بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان کے اندر پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی زراعت کو بے حال کرنے کا ناپاک منصوبہ ان بدبخت حکمرانوں کا منشور ہے۔ پاکستان بھر کے اندر صدر کسان بورڈ پاکستان جناب سردار ظفر حسین خان صدر کسان بورڈ پاکستان کی کال پر آج پورے ملک کے اندر پاکستان کا محنت کش کسان سراپا احتجاج ہے۔ جی ایس ٹی کی صورت میں کسانوں کے منہ سے، کسانوں کے بچوں کے منہ سے آخری نوالا چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ معاشرے کا 80% کسان جب جاگ جائے گا تو یہ محلات، یہ ایوان اقتدار تمہاری دسترس میں نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں کے حقیقی قیادت خود کسان آ کے سنبھالیں گے۔ آج کے اس مظاہرے کے اندر میرے بڑے ہی محترم کسان رہنما جناب حاجی شفیق کبو صاحب، جناب سعید رنداوا صاحب، علیار سومرا صاحب، جناب مار نذیر صاحب، جناب علی شیخ گادی صاحب، جناب رائے منشا صاحب، سکندر یوسف لونا صاحب، مار عباس لاکھ صاحب، اور اس طرح سے حبیب اللہ بھٹی صاحب اور بہت سے دوست اس مظاہرے کے اندر شریک ہیں۔ میں گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے جناب اقبال احمد واجد ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا جناب سعید رنداوا تحصیل صدر کسان بورڈ ساہیوال سے کہ وہ آئے اور کسانوں سے مخاطب ہوں۔ جناب چودھری سعید رنداوا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پروگرام ہم نے کیا ہے کسانوں کے ساتھ ظلم کا، جو گورنمنٹ نے یہ ڈیزل، کھاد اور یہ ادویات وغیرہ کے ساتھ جو ٹیکس لگائے ہیں، ان کی قیمتیں زیادہ کی ہیں، ان کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اور تمام کسان بھائیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہماری کسان بورڈ تنظیم میں شامل ہو کر ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم اپنا حق چھین کے لیں گے گریبان تک پہنچ کے، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق ضرور حاصل کریں گے۔ میری سب کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم مل کے یہ سارا کام مکمل کریں گے۔ شکریہ۔ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ساہیوال جناب وقار احمد بٹو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کسانوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جناب وقار احمد بٹو صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، میرے کسان بھائیوں، یہ ہمیشہ سے استعمال کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا خون نچوڑ کر ان پر اپنے شاہی محلات اٹھاتے ہیں اور ان کی کھوپڑیوں کا مینار اڑاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ خون کو نچوڑ کر وہ اپنا سامان تعیش نکالتے ہیں۔ آج بھی ہر طرف یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ
जो हुक्मरानों के महलात के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी हालत यह है कि वो जो जागीरदार है, वो सरमायादार है, उनको इतना भी एहसास नहीं कि ये जो किसान है, जो दिन रात एक करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं। उनके लिए जो डीजल होता है वो महंगा कर दिया जाता है, और उनके लिए जो फ्लाइट्स होती हैं, उनके सारे चीजें उनके लिए मुफ्त होती हैं। वो अरबों का रुपया जाया करते चले जाते हैं। लेकिन ये जो किसान, जिसके बल पर हमारे पाकिस्तान की मैशत है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी सारा कुछ यहाँ से तैयार होता है, पैदावार सारी तैयार होती है, ये किसान लोग ही तैयार करते हैं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि हमें किस तरह दिन रात एक करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। और हमारे लिए इन जो छोटे किसान हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने ये जो इक़दाम किया है, एक तो डीजल को महंगा कर दिया है, फिर ऊपर से GTS लगा दिया है, और फिर ये है कि इसके जरिए से जो इन आवाम को रिलीफ मिलना था वो भी खत्म होकर रह गया है। किराया महंगा होता है तो हमारे लिए महंगा होता है, डीजल की कीमतें चढ़ती है तो पानी हमारा बंद होता है। एक तरफ इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, दूसरी तरफ से डीजल महंगा करके इसको भी निचोड़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये सारी कंडीशन अगर इसी तरह बरकरार रही, और अगर आप ये आवाज लेकर निकले, अगर पूरे पाकिस्तान के किसान जाग उठे और उनको बता दें कि हम अपना हक छीन कर लेंगे और हमें हक लेना भी आता है, तो इंशाल्लाह ये डीजल की कीमतें भी वापस होंगी, ये टैक्स भी वापस होंगे, और ये महलात के अंदर रहने वाले हैं, ये यहाँ से छोड़कर जिस तरह मिस्र और तीनस के अंदर से उनके जो उनके ऊपर बैठे हुए हुक्मरान थे वो दौड़ कर भाग गए थे, इसी तरह इन हुक्मरानों को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट है ये भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी आप ही किसानों के बेटे हैं, और इंशाल्लाह हमारा सारी जो आवाज वो आपके साथ है। अब मैं गुजारिश करूंगा हबीबुल्लाह भट्टी साहब, सदर है राब्ता कमेटी से, कि वो आए और साहिवाल के किसानों से मुखातिब हो। जनाब हबीबुल्लाह भट्टी साहब। मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ऐ हुक्मरानों, सुन लो, अब पहले तुम लोगों ने गरीबों का खून किया था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर गरीबों के कपड़े उतारे थे, गरीबों का खून किया था। अब तुमने GTS टैक्स लगाकर किसानों का खून किया है। हम सर पर कफन बांधकर ऐ हुक्मरानों तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अब तुमने गरीब किसानों का खून किया है, इंशाअल्लाह ताला आज हम खून से लकीर खींचेंगे। ये किसानों का खून अनकरीब तुम्हारे मोहल्लात को बहा कर ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह तुमने गरीबों का जीना हराम कर दिया है और किसानों पर टैक्स पे टैक्स लगाकर तुमने उनका जीना हराम कर दिया है, इंशाअल्लाह ताला अब दिन दूर नहीं कि हम तमाम गरीब, तमाम किसान तुम्हारे महल्लात और तुम्हारे मजमून और आग पसपा कर देंगे। आज तमाम भाइयों को यह अहद करना होगा, तैयब महमूद बलोच की कॉल पर लब्बैक कहनी होगी, और अहद करो कि हम सर पर कफन बांधकर इन जालिमों के खिलाफ निकलेंगे और तब तक जंग लड़ेंगे जब तक इन जालिम हुक्मरानों को मुल्क बदर नहीं कर दिया जाता। इन लोगों ने पाकिस्तान के वसाइल लूटे, इन लोगों ने गरीबों का खून किया, इन लोगों ने अब किसानों पे GTS टैक्स लगाकर किसानों का भी खून किया है। मेरे भाइयों, अब जागना होगा, आपकी गैरत को जगाना होगा और तमाम किसानों की गैरत को जगाना होगा। इन लोगों ने हमारे मुल्क की इज्जतें बेची है, इन लोगों ने हमारे मुल्क के वसाइलों को लूटा है। अब किसान जो जमीन से फसल पैदा करता है वो ओने पोने खरीदते हैं और यही इनकी टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई है, शुगर मिल्स लगी हुई है, वहां से चीनी देखो कैसे मिलती है, कपड़ा खरीद के देखो कैसे मिलता है। अब अहद करो इन जालिमों से निजात हासिल करने के लिए, सर पे कफन बांधो। मेरे भाइयों, निकलो और निकलो,
इन ज़ालिमों से निजात हासिल करने के लिए निकलो। तैयब महमूद बलोच साहब हल्का 222 के रुकन जमात इस्लामी ग्रुप लीडर, इनकी कॉल पर हमें तमाम भाइयों को तमाम काम छोड़कर ये हमारे भले के लिए अपना वक्त और अपना पैसा खर्च करता है, इसकी कॉल पर लब्बैक कहना होगा। और जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए आज एक लकीर खींचो, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक ये जंग लड़ेंगे जब तक इन जालिमों से निजात हासिल नहीं हो जाती। मेहरबानी। मैं हुकूमत पाकिस्तान को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आज का ये अलामती मुजाहिरा, आज का ये पुरअमन मुजाहिरा जो बिल्कुल पुरअमन तौर पर हमने मुनक्कद किया है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो किसान पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि वो हुक्मरान जो आज पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो किसान जो अपने मसाइल को लेके आज सड़कों के ऊपर मौजूद है, जो अपने मसाइल को, मामलात को हल करने के लिए हुकूमत वक्त को एहसास दिलवा रहे हैं कि अपनी जालिमाना पॉलिसियों को, किसानों की कमर तोड़ने वाली पॉलिसियों को बदलो। ए पाकिस्तान के बेस हुक्मरानों, तुम्हारे लगाए हुए ये जर्नल सेल्स टैक्स, तुम्हारी बढ़ाई हुई ये डीजल और अद्वियात की कीमतें हम बिल्कुल इसी तरह समझते हैं कि आप हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनना चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब किसान जागेगा, इस मुल्क का मुकद्दर जागेगा, और जब किसान जागेगा इस मुल्क के अंदर अमन होगा। जब किसान जागेगा अदल और इंसाफ भी मुयस्सर होगा। और मैं कहना चाहता हूं, जब किसान जागेगा पटवारी भी खादिम बन जाएगा, पुलिस भी खादिम बन जाएगी, महकमा माल वाले भी खादिम होंगे और महकमा खुराक वाले भी खादिम होंगे। किसानों, आज आप सदर चौक के अंदर आए हैं, अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह आपके हौसलों में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये दिया जो आज जलाया है, जो राय मंशा ने जलाया है, जो अली शेख गादी ने जलाया है, जो मार अब्बास लक ने दिया जलाया है, जो हाजी शफीक कमो ने जलाया है, जो मार गुलाम फरीद ने, हबीबुल्लाह भट्टी ने और सईद रंधावा ने दिया जलाया है, जो मार सरवर ने दिया जलाया है, जो यार सोमरा और सिकंदर लूना ने दिया जलाया है। इंशाअल्लाह ताला ये दिए से दिया जलेगा और ये पाकिस्तान जो आज काल कोठड़ी बना हुआ है, जो आज मजदूरों और जफाकशों के लिए काल कोठड़ी बना हुआ है, जो फांसी की फंदा बना हुआ है, इंशाअल्लाह ये दारुल अमन बनेगा, ये दारुल इख्वा बनेगा। इस मुल्क के अंदर हकीकी क़यादत आएगी, किसान मुज्तमा होंगे, किसान इकट्ठे होंगे, किसान के इत्तेफाक के साथ एक शानदार क़यादत आएगी। फिर इन ऐवानों के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद होंगे, इन ऐवानों के अंदर पॉलिसी साज आपके लोग मौजूद होंगे। फिर हाजी शफीक कमो पॉलिसियां बनाएंगे, फिर राय मंशा पॉलिसियां बनाएंगे, फिर आपके हकीकी रहनुमा इन इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर आएंगे। और जब हकीकी क़यादत आएगी तो पाकिस्तान के अंदर कलमा तैयबा का सबज फरेरा लहराएगा, अमन आपकी दहलीज पर मौजूद होगा, पुलिस आपकी खानम होगी। फिर किसी SHO को, किसी फूड इंस्पेक्टर को, किसी पटवारी को,
किसी टीसी और डीपीओ को आपकी जेब काटने की जरूरत नहीं होगी। फिर हर इंजीनियर और हर डॉक्टर आपकी जेब पर हाथ नहीं रखेगा, आपकी नब्ज पर हाथ रखेगा, आपकी सेहत का फिक्र करेगा। आपको जागना है, आपको बेदार होना है, आपको दिए से दिया जलाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिए से दिया जलेगा, ये मुल्क पाकिस्तान दर हकीकत मुल्क पाकिस्तान बनेगा, बुकाए नूर बनेगा। हम मजम्मत करते हैं हुकूमत पंजाब की कि खानेवाल के अंदर अंजुमन मज़ारिन ने अपने हकूक के लिए उनके साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सदर किसान बोर्ड जिला खानेवाल जनाब यूसुफ खट्टक की क़यादत को सलाम पेश करते हैं कि वो हजारों किसानों के साथ आज जेलों के अंदर मौजूद है, अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं। यूसुफ खट्टक के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इस मुल्क के अंदर जो अपना हक मांगता है वो दहशतगर्द है, और जो मुसलमानों को कत्ल करता है उसको ये प्रोटोकॉल के साथ कभी मुशर्रफ की सूरत में, कभी रेमन डेविस की सूरत में गॉर्ड ऑफ ऑनर देते हैं। हम इनकी इस इकदामात का मजम्मत करते हैं और हुकूमत पंजाब से कहते हैं जो खानेवाल में और कोड़ा में जो अंजुमन मज़ारिन के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनके पर्चे बिल्कुल वापस लें और उन्हें बाइज्जत रिहा करें और उनके किए गए वादों को पूरा करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस मुल्क का और इस मुल्क के रहने वालों का हामी और नासिर हो, और किसान को अवेयरनेस, शऊर और बेदारी की कुव्वत से माला माल कर दे। आप मेरे साथ ये ऐद करते हैं, अपनी बालू को खड़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी क़यादत को आगे लाएंगे। वो हकीकी क़यादत जो दर हकीकत किसानों की नुमाइंदा क़यादत हो, अवाम की नुमाइंदा क़यादत हो। हम चाहते हैं कि यूनियन काउंसिलों के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बलियों के अंदर आपके ये नुमाइंदे मौजूद हों, आपके हकीकी नुमाइंदे मौजूद हों। किसान बोर्ड की तगोदो, किसान बोर्ड की कोशिश यही है कि आप इकट्ठे हो, अपनी हकीकी क़यादत को आगे लेके आए जो इस मुल्क का मुकद्दर बदल दे, इस मुल्क के वासियों का मुकद्दर बदल दे। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो हमें कुव्वत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को रास्त इक़दाम करने वाली क़यादत अता फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के इन किसानों के साथ जो मसाइल बरपा है, इन किसानों के मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह, ये जो लोग तेरे खैर की तलाश में, अपने हकूक की तलाश में सड़कों पर निकले हैं और आज पुरअमन है, इन्हें इनके हकूक अता फरमा दे। या अल्लाह, पाकिस्तान के हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमा दे या इनसे हमें छुटकारा अता फरमा दे। या अल्लाह, पाकिस्तान के हुक्मरानों को या तो तू हदायत नसीब फरमा दे या इनसे हमें छुटकारा अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें नेक और बद की पहचान अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें खैर और शर की तमीज अता फरमा दे। या अल्लाह, इस पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमा। या अल्लाह, हकीकी क़यादत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, वो जुर्रत दे दे जो तूने मुअव्वज़ और माज को दी, मोहम्मद बिन कासिम को दी, इब्ने ज़ियाद को दी कि जालिम का गिरफ्तार पकड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जेबें काटने वाले इन पाकिस्तान के गासब अहलकारों को बाजू तोड़ दे, इनके हाथ काट दे। या अल्लाह, ये जालिमों के हकूक को गसब करते हैं। या अल्लाह, ये मजबूरों और मजमूरों के साथ जुल्म करते हैं। या तू उन्हें हिदायत दे दे या इनके हाथ तोड़ दे, इन्हें नीस्तो नाबूद कर दे। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तमाम अहबाब की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारा पुरअमन मुजाहिरा आज खत्म होता है। तमाम अहबाब पुरअमन अंदाज से मुंतशिर होकर अपने अपने घरों की तरफ खैर व अफियत से रफा दवा हों।